السلام علیکم پیارے دوستو۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جو نہایت رحم دل اور رعایا پرور تھا۔ اس کے یہاں فوج اور مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے صرف دو ہی لڑکے تھے، ایک کا نام شہریار تھا اور دوسرے کا نام شہزاد تھا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد شہزاد تخت کا جانشین ہوا، لیکن شہزاد نے سوچا کہ میں تخت کا مالک ہو گیا ہوں، چھوٹے بھائی شہریار نے کیا قصور کیا ہے جو اس کو محروم رکھا گیا، حالانکہ وہ بھی اسی باپ کی اولاد ہے جس کی میں ہوں۔ اس نے بغیر کسی دباؤ کے آدھی سلطنت اپنے چھوٹے بھائی شہریار کے حوالے کر دی۔ دونوں بھائی اپنی اپنی حکومت کے کاموں میں لگ گئے۔ ان کی والدہ بڑے لڑکے شہزاد کے ساتھ رہتی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن شہزاد کی والدہ نے شہزاد سے کہا کہ تم کیسے حقیقی بھائی ہو کہ ایک دوسرے کی خبر تک نہیں رکھتے، نہ کبھی ایک دوسرے کو یاد کرتے ہو۔ تمہیں 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، آپس میں ملنا تو چاہیے۔ میری آنکھیں بھی شہریار کو دیکھنے کے لیے ترستی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم قاصد بھیج کر شہریار کو یہاں بلا لو۔ ماں کا حکم شہزادہ کیسے ٹالتا؟ فوراً اپنے وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ شہریار کے پاس جائے اور اس کو ہمارا پیغام پہنچا دے۔ اسی وقت وزیر نے اپنی روانگی کے لیے فوراً سواری کا انتظام کرایا اور روانہ ہو گیا۔ 15 دن کا سفر کرنے کے بعد وزیر اس کے ملک میں پہنچا۔ محل کے دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا کہ جہاں پناہ سے کہو کہ ایک قاصد بغداد سے پیغام لے کر آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ دربانوں نے اطلاع محل میں بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ یہ سنتے ہی جس حالت میں تھا اسی طرح وزیر کے استقبال کو دروازے پر آیا۔ شہریار وزیر کو اپنے ساتھ محل میں اندر لے گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد اپنی والدہ اور بھائی کی خیریت معلوم کی۔ وزیر نے وہ پیغام جو کہ شہزاد نے اسے دیا تھا شہریار کو پڑھ کر سنا دیا۔ یہ پیغام سن کر شہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنکھوں کے آگے اپنے بچپن کا نقشہ یاد آ گیا۔ یہ سوچنے لگا ہم کیسے بھائی ہیں جو 10 سال سے علیحدہ ہیں، ماں کیا کہتی ہوں گی؟ دل بے قرار ہو گیا۔ اسی وقت دربار میں اپنے وزیر کو بلا کر تمام کام اس کے سپرد کر دیے۔ بیوی بچوں کو خدا حافظ کہے بغداد کے وزیر کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابھی اس کو سفر کرتے ہوئے تیسرا دن تھا کہ اس نے رات کو ایک بھیانک خواب دیکھا جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بغداد کے وزیر کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ وزیر نے واپسی کی وجہ معلوم کی تو شہریار نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میرا وزیر ملکہ سے لڑ رہا ہے، میرے بچے کھڑے رو رہے ہیں، دونوں طرف سے تلواریں ٹکراتی رہیں لیکن کوئی کامیاب نہ ہوا۔ آخر دونوں نے تلواریں پھینک دی اور آپس میں صلح کر لی، مگر بچے بدستور کھڑے رو رہے ہیں، انہیں کسی نے بھی خاموش نہ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑا اور محل سے باہر چھوڑ دیا۔ بچے یہاں سے سیدھے جنگل کی طرف چلے گئے۔ جب شام ہو گئی تو تمام جانور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ اتفاق سے ایک خونخوار شیر ادھر آ نکلا۔ بڑا شہزادہ اس سے ڈر کر درخت پر چڑھ گیا لیکن چھوٹے سے نہ چڑھا گیا اور اس کو شیر نے چیر پھاڑ ڈالا۔ بڑا شہزادہ جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا بے ہوش ہو کر درخت سے نیچے گر پڑا، جس کو ایک جنگلی ریچھ اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اپنے بن میں لے گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، ضرور کوئی بات ایسی ہوئی ہے کہ جس سے کوئی خطرہ ہو، میرا واپس چلنا مناسب ہوگا۔ بغدادی وزیر نے بہت کچھ اس خواب کے اثر کو دل سے اتارنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور واپس چلنے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں سے انہوں نے اپنے گھوڑے تیز دوڑا دیے جو کہ 1.5 دن کے اندر واپس محل تک آ گئے۔ شہریار اور بغدادی وزیر ننگی تلواریں لیے دربار میں داخل ہوئے۔ یہاں اس نے وزیر کو عجیب حالت میں پایا۔ وزیر نے شراب پی رکھی تھی، موٹی موٹی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں، اس کو ذرا بھی ہوش نہ تھا، ہاتھ کہیں تو پیر کہیں۔ خادمائیں اپنے بادشاہ کو دیکھتے ہی یہاں سے غائب ہو گئی تھیں۔ بادشاہ تخت کے نزدیک پہنچا تو اس نے ایک شاہی فرمان تخت پر رکھا ہوا دیکھا۔ شہریار نے یہ فرمان اٹھا کر پڑھا جو رعایا کے نام تھا۔ اس میں وزیر نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس کو پڑھ کر ہی شہریار آپے سے باہر ہو گیا اور تلوار کا ایک ہاتھ اس زور سے مارا کہ وزیر کی گردن الگ ہو گئی۔ ادھر سے فارغ ہو کر شہریار اپنی رہائش گاہ کی طرف چلا، لیکن وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کوئی موجود نہ تھا، نہ ملکہ تھی اور نہ ہی شہزادے تھے۔ شہریار نے باہر آ کر ایک لونڈی سے ملکہ اور شہزادوں کے بارے میں معلوم کیا تو لونڈی نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد ملکہ اور چھوٹے شہزادے کو وزیر نے خود اپنی تلوار سے قتل کر کے ان کی لاش دور ایک دریا میں ڈلوا دی تھی۔
बड़े शहजादे को एक दरबारी किसी तरह छुपाकर महल से बाहर ले गया, शायद कि वो कैद खाने में है, क्योंकि वजीर उसको भी कत्ल करना चाहता था, मगर एक जानिसार उसको छुपाकर यहाँ से ले गया। लेकिन वजीर ने उन दोनों की गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर कर दिया था जो कल गिरफ्तार होकर आए हैं, और अब वो दोनों कैद खाने में मौजूद हैं। शहरयार ने जब ये सुना कि मेरी बीवी और बच्चे को वजीर ने हुकूमत पर काबिज होने की वजह से कत्ल किया है, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, पैरों तले की जमीन निकल गई, उसका दिमाग चक्कर खाने लगा, उसकी हालत बिल्कुल पागलों की सी हो गई। बगदादी वजीर जो शहरयार के साथ था हिम्मत दिलाता था मगर बेसूद। शहरयार सर को दीवारों से टकराता था। उसको इस तरह 8 रोज गुजर गए। इस सदमे का असर भी दिमाग से कुछ कम हुआ तो कैद खाने से अपने लड़के और उस जानिसार को बुलाया जिसने उस लड़के को महल से छुपाकर निकाला था। जिस वक्त वो लड़का शहरयार के सामने आया तो आंखों से आंसू जारी हो गए। इधर लड़के ने बाप को देखकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इधर बगदादी वजीर को बगदाद से आए हुए 1 माह से जायद हो गया था। शहजाद को फिक्र हुआ कि वजीर ना मालूम क्यों इतनी देर रुका, जरूर कोई बात है। सवारी का इंतजाम कर लश्कर साथ ले रवाना हो गया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ शहर तक पहुंचा। किसी ने महल में आकर खबर दी कि किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी है, उसके साथ बहुत सी फौज है, आप बिल्कुल बेखबर बैठे हुए हैं। शहरयार ये खबर सुनते ही आग बगूला हो गया और फौरन ही नक्कारा बजा दिया गया। ये नक्कारा सिर्फ खतरे के वक्त बजा करता था। उसकी आवाज से तमाम फौज एकदम हथियार लगाकर तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद ही लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया गया। रात का वक्त था। शहजाद के लश्कर के सिपाही सफर की वजह से थककर चूर हो गए थे और इसी वजह से बिल्कुल बेखबर पड़े सो रहे थे। रात के अंधेरे ही में उन गरीबों पर शहरयार के लश्कर ने धावा बोल दिया। 3-4 घंटे तक बड़ी खूनरेज जंग रही जिसमें शहजाद मारा गया। उसके लश्कर के 3 हिस्से सिपाही मारे गए। एक हिस्से में से कुछ तो बगदाद को वापस भाग गए और जो बाकी बचे वो गिरफ्तार कर लिए गए। सुबह सवेरे जब ये सिपाही कैदी की हैसियत से शहरयार के सामने पेश हुए तो शहरयार ने सर पीट लिया। उन कैदियों ने बताया कि रात जंग में हमारे जहां पनाह भी मारे गए हैं। शहरयार अब जिंदगी को अपने ऊपर एक मुसीबत समझ रहा था। क्या करे क्या ना करे। अपने बड़े भाई की लाश मंगाकर दफन कराई और बगदादी वजीर से मशवरा किया कि अब उसको क्या करना चाहिए। उधर वजीर भी अपनी जगह पत्थर था, वो क्या मशवरा दे। भाई ने भाई को धोखे में खत्म कर दिया। खैर शहरयार अपनी हुकूमत की बागडोर वजीर को सौंपकर बगदाद की तरफ चल दिया। 10-12 रोज के बाद जब बगदाद पहुंचा तो उसने अपनी वालिदा को एक कासिद के हाथ इत्तला भिजवाई। जब शहरयार की वालिदा को ये मालूम हुआ कि शहरयार बगदाद आ गया है और मिलना चाहता है तो उसने आओ देखा न ताओ फौरन उसकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कासिद ने शहरयार की खिदमत में हाजिर होकर बूढ़ी मलका का पैगाम सुनाया। अपनी गिरफ्तारी का हुक्म सुनकर शहरयार ने शर्म से आंखें झुका ली और गर्दन नीचे करके चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ कासिद के सामने कर दिए। कासिद ने हाथों में हथकड़ी डालने से इनकार किया और कहा, आप बादशाह हैं और ये हुक्म आपकी वालिदा का है, आप मेरे साथ चलें। हथकड़ी मुजरिमों के लिए होती है, बादशाहों के लिए नहीं। ये सुनकर शहरयार को गुस्सा आ गया और बोला, मैं जैसे कह रहा हूँ उसकी तामील करो। मैं भी एक मुजरिम हूँ। मैंने अपने भाई को बेगुनाह कत्ल कराया है, अपनी भाउज को बेवा कराया है और 4 बच्चों के यतीम होने का मैं जिम्मेदार हूँ। शहरयार की ये बातें सुनकर कासिद लाजवाब हो गया। उसने शहरयार के हाथ पैरों में बेड़ियां डाली और घोड़े पर सवार हो गया। बराबर में जो घोड़ा खाली खड़ा था उस पर शहरयार को बैठने के लिए कहा, लेकिन शहरयार ने घोड़े पर भी बैठने से इनकार कर दिया और कहा, बेहतर यही है कि तुम मुझे बगदाद के कूचों और गलियों में से पैदल लेकर चलो ताकि यहाँ की रियाया अपने बादशाह के कातिल और गुनहगार को अच्छी तरह देख सके। कासिद शहरयार को पैदल लेकर महल की तरफ चल दिया। बहुत से लोगों ने शहरयार पर आवाज़ें कसी, बहुत से लोगों ने लानत भेजी, मगर शहरयार की आंखों से आंसू जारी थे। ये हर आदमी की बात का सिर्फ ये जवाब देता जाता था, बेशक आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक है। आखिरकार ये दोनों महल में दाखिल हो गए। थोड़ी देर तक तो शहरयार को एक कमरे में बंद रखा गया। बूढ़ी मलका ने उसी वक्त दरबार लगने का हुक्म दिया। जब दरबार लग गया तो मलका मुंह पर नकाब डालकर दरबार में आई और तख्त पर बैठ गईं। मुल्जिम को बूढ़ी मलका के सामने पेश किया गया। शहरयार उस वक्त एक बागी की हैसियत से सर को झुकाए हाथ बांधे खड़ा था।
बूढ़ी मलका ने एक कहर भरी निगाह से अपने बेटे शहरयार को देखा और कहा, क्या मैं तुमसे ये मालूम कर सकती हूँ कि तुमने बगदाद के बादशाह को इस लालच से कत्ल कराया है कि तख्त पर तुम खुद काबिज हो जाओ। शहरयार ने सब कुछ सुना, मगर उसकी क्या मजाल थी कि माँ के आगे सर उठाकर कुछ कह सके। दूसरे एक कत्ल के इल्ज़ाम की हैसियत से दरबार में खड़ा था और ना ही उसके पास कोई जवाब था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बूढ़ी मलका बोली, हमारे सवाल का जवाब दो वरना फैसला कर दिया जाएगा। शहरयार ने गर्दन ऊपर उठाई, उसकी हिचकी बन गई। बोलने की बहुत कोशिश की मगर बोला नहीं जा रहा था। उसने तो संभलने की काफ़ी कोशिश की मगर नाकाम रहा। बूढ़ी मलका उसकी ये हालत देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो ये ख्याल कर रही थी कि शहरयार मुझे धोखा देने की कोशिश में है। चेहरे से नकाब ऊपर उठाई और कांपते हुए बोली, तुम्हें मालूम है हमारे यहाँ बागी को क्या सज़ा दी जाती है? मालूम होता है कि हमारे भेजे हुए वजीर को पहले ही कत्ल कर डाला, वरना वो ज़रूर वापस आता। तुम आस्तीन के सांप हो, तुमने आस्तीन में रहकर कीमती भाई के डंक मारा है। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि उस भाई ने बगैर किसी के कहे सुने आधी सल्तनत तुम्हारे हवाले कर दी थी? उसकी मेहरबानी का नतीजा तुमने खूब चुकाया। जो कुछ तुम्हें कहना हो कह डालो, वरना बाद में कोई उज्र न सुना जाएगा। शहरयार ने दिल को काबू में करके मलका की बात का जवाब देते हुए कहा, मलका आलम, मेरी गुस्ताखी माफ़ हो। मैंने आपको मलका आलम इसलिए पुकारा कि मैं इस वक्त आपके सामने एक बेटे की तरह नहीं आया, बल्कि एक मुल्जिम की तरह से आया हूँ। आपकी हुकूमत और कानून की इज्जत करते हुए मैं इतना कह सकता हूँ कि जो कुछ ये खेल खेला गया है वो मेरी ला इल्मी की बिना पर। मैं अपनी जगह पर बेकसूर हूँ। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा, क्योंकि हर मुल्जिम अपने को अच्छा बताकर पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन कानून जो चाहता है वो होता है। जिस वक्त मेरे मरहूम भाई ने मुझे अपनी खिदमत में तलब करने के लिए अपने वजीर को भेजा तो मैं अपनी सल्तनत का तमाम काम अपने वजीर के सुपुर्द करके यहाँ के लिए रवाना हो गया। तीसरे रोज़ रात को मुझे एक खौफनाक ख्वाब दिखाई दिया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बेचैन हो गई और मैं वजीर के साथ ही वापस लौट गया। वहाँ पहुँचकर मैंने ये देखा कि मेरा वजीर नशे की हालत में पड़ा हुआ है। रियाया के नाम एक फरमान लिखा रखा है जिसमें उसने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। मैंने उसको पढ़कर चाक कर डाला और गद्दार को मौत के घाट उतार कर रिहाइशगाह की तरफ गया तो वहाँ ना मलका थी और ना ही दोनों शहजादे। उनके बारे में मुझे एक लौंडी ने बताया कि मेरी रवानगी से कुछ देर बाद ही मेरे वजीर ने मलका और छोटे शहजादे को कत्ल कर डाला था। बड़े शहजादे को किसी सूरत से एक जानिसार महल से लेकर फरार हो गया था, लेकिन उस जालिम ने उन दोनों को गिरफ्तार कराकर कैद खाने में डाल दिया था। अगर मैं एक रोज भी बाद जाता तो वो उन दोनों को कत्ल करा देता। अभी मैं इसी उधेड़ बुन में था कि मुखबर ने आकर खबर दी कि किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी। मैं खुद इस कदर मगमूम था कि बयान से बाहर है, दिमाग काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मैंने नक्कारे पर चौब लगवाई और मुकाबले के लिए लश्कर रवाना कर दिया। सुबह होने पर यह राज खुला कि घर की आग ही ने घर को जला दिया। इतना कहकर शहरयार खामोश हो गया। मलका ने उन तमाम बातों को गौर से सुना, लेकिन उसके दिल में फिर भी शक रहा। जब उसके दिल में यह ख्याल आता कि जो कुछ भी शहरयार कह रहा है ठीक है, तो उसको और ज्यादा गम होता, क्योंकि एक तरफ जवान बेटे की मौत, दूसरी तरफ बहू और पोतों का कत्ल। मगर जब मलका ये ख्याल करती कि शहरयार झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहा है तो ये जी चाहता कि इसको किले की दीवार से धक्का देकर गिरा दिया जाए या इसको भी कत्ल करा दिया जाए। बहुत देर तक इसी उलझन में रही कि क्या किया जाए। काफ़ी सोचने के बाद मलका ने यह तय किया कि जब तक हमारा वजीर वापस नहीं आ जाएगा हम तुम्हारे लिए कोई सही राय कायम नहीं कर सकते हैं। तुमने जो बयान दिए हैं अगर वजीर ने उनको ठीक बताया तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर इसमें ज़रा भी झूठ निकला तो फिर खून का बदला खून। हम आज ही एक ऐसा आदमी रवाना कर रहे हैं जो तुम्हारे काम को संभाल लेगा, उससे बगावत का कोई खतरा नहीं। इतना कहकर बूढ़ी मलका ने सरदार आमिर को अपने पास बुलाया और समरकंद के लिए रवाना कर दिया। एक खत जो खुद मलका ने अपने हाथ से लिखा था आमिर को दिया कि वो जाते ही पहले यह खत वजीर को पहुंचा दे, और जब तक यहाँ से कोई हिदायत ना पहुंचे हुकूमत के काम को अच्छी तरह होशियारी के साथ अंजाम देता रहे। सरदार आमिर ने झुककर अदब से सलाम किया और समरकंद के लिए रवाना हो गया। इधर बूढ़ी मलका ने शहरयार को जेल खाने भेज दिया। उसकी निगरानी के लिए अपने खास सिपाही मुकर्रर कर दिए। सरदार आमिर मंजिल दर मंजिल कूच करता हुआ समरकंद जा पहुंचा। 4 दिन बाद 4 रात 4 दिन 4 दिन 4 रात 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 4 दिन
महल के दरवाजे पर जाकर इत्तला कराई कि मैं बगदाद से एक पैगाम लेकर आया हूँ, मुझे शहरयार ने भेजा है, बगदाद के वजीर से मेरी मुलाकात कराई जाए। ये सुनकर दरबानों ने जवाब दिया कि इस वक्त तो यहाँ पर कोई बगदाद का वजीर मौजूद नहीं है। हमारे जहाँ पनाह जिस शख्स को हुकूमत संभाल गए थे 4 रोज हुए घोड़े से गिरकर इंतकाल कर गए, उनकी जगह पर अब हमारे शहर कोतवाल मुकर्रर हुए हैं। उनको यहाँ की रियाया की मर्जी से जगह मिली है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वो पैगाम हमें बता दें ताकि उनसे इजाज़त हासिल कर ली जाए। सरदार आमिर ने माथे से पसीना साफ किया और ये कहकर कि मुझे कोतवाल साहब से कोई काम नहीं है, घोड़े पर सवार हो गया। सरदार आमिर समरकंद की एक सराय में पहुंचा। यहाँ की भटियारी एक बहुत बड़े गाहक को देखकर बाग बाग हो गई। उसने दिल में ख्याल किया कि बस अब किस्मत खुल गई है, ये जरूर किसी मुल्क का बादशाह है। अगर इसकी खिदमत अच्छी तरह हो गई तो ये चलते वक्त माला माल कर देगा। भटियारी ने सरदार के हाथ से घोड़े की लगाम लेकर घोड़ा एक तरफ बांध दिया। सरदार के हुक्म के मुताबिक उसने खाना तैयार किया। शाम हो गई थी और आमिर ने 15 रोज की मंजिल भी तय कर रखी थी। थककर तमाम बदन चूर हो चुका था। खाने से फारिग होकर चुपचाप सो गया। इसी तरह उसको 3 दिन गुजर गए। ना ये कहीं बाजार जाता ना किसी से बात करता तो भटियारी को उस पर शक हुआ। उसने फौरन ही सरदार से कहा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि आप कहीं के जासूस हैं। सरदार ने जो ही जासूस का लफ्ज़ सुना तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। सरदार की ये हालत देखकर भटियारी आपे से बाहर हो गई और बोली, मियाँ मुसाफिर, बात खरी कहने में चौंकना नहीं चाहिए। हमारे मुल्क में तो पहले ही लड़ाइयाँ हो रही हैं। तुम जैसे लोगों से डर लगता है, क्योंकि अब अगर हमारे हाकिम को मालूम हो जाए कि तुम इस तरह आए हुए हो तो वो हमारे ख़ानदान तक का नामो निशान तक बाकी ना छोड़ेगा। मैं तो इसकी इत्तला दरबार तक पहुंचाऊंगी। वहां तुम्हारे साथ क्या सुलूक होगा ये तुम जानो। अगर मैं अपनी जान खतरे में डालूं तो मुझे क्या फ़ायदा। लालच के कारण सब कुछ कर लिया जाता है। सरदार ने अपने गले से एक बहुत कीमती हार उतारा और भटियारी के हवाले कर दिया। उस हार को भटियारी देखते ही फूल गई और बोली, अब तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुसीबत सामने आई भी तो मैं उससे मुकाबला कर लूंगी। ये सुनकर सरदार के दम में दम आया और फिर इस खोज में लग गया कि बगदादी वजीर कहाँ गया, अपनी मौत मरा है या उसको भी खत्म कराया है। अभी इस सोच में पड़ा हुआ था कि एक लड़की भागी हुई सरदार के पास आई और बोली, मियाँ मुसाफिर, यहाँ खामा खां अपना वक्त जाया कर रहे हो। बगदाद में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अगर तुम 8 रोज के अंदर वहां ना पहुंच सके तो तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल होगी। सरदार ने यह सुनकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं बगदाद से आया हूँ। लड़की ये सुनकर हंसी और कहने लगी, बस जो तुम्हें बता रही हूँ वो ठीक है, अपना वक्त खराब ना करो, फौरन वापस लौट जाओ। सरदार ने लड़की से कहा कि बगदाद का सफर तो 15 दिन का है। अगर मैं अभी रवाना हो गया तब भी 8 दिन के अंदर बगदाद नहीं पहुंच सकूंगा। हाँ, कोई और सूरत तुम्हें दिखाई देती हो तो बताओ। लड़की हंसी। उसने अपना उल्टा हाथ आगे किया। उसमें एक सोने की अंगूठी पहने हुए थी। उस अंगूठी में एक बहुत चमकदार शीशा लगा हुआ था। लड़की ने सरदार से कहा, इस शीशे को गौर से देखो। सरदार ने एक निगाह जो उस पर डाली तो बगदाद शहर नजर आने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बाजार दिखाई दिए। उसी तरह किला आ गया। जिस वक्त किला दिखाई दिया तो सरदार ने कहा, मैं जरा यहाँ के हुक्मरां को देखना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ उनकी तरफ से फिक्र है। लड़की ने अंगूठी पर हाथ फेरा जिससे ये तस्वीरें जमकर रह गईं। फौरन ही उस अंगूठी में दरबार की तस्वीरें नजर आने लगीं। मलका तख्त पर बैठी हुई हैं। दरबारी दरबार में सर झुकाए अदब के साथ खड़े हुए हैं। शहरयार को कुछ सिपाही बेड़ियां पहनाए हुए दरबार में लेकर आए। मलका ने उनको देखते ही सवाल किया कि इसको मेरे सामने क्यों लेकर आए हो, मैं इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। ये सुनकर एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा, मलका-ए आलम, जेल खाने में ये खुदकुशी करना चाहते थे, इसलिए हम इनको आपकी खिदमत में पेश करने आए हैं। मलका को फौरन ये ख्याल हुआ कि शहरयार बागी है, गद्दार है, इसलिए ये खुदकुशी कर रहा था। जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि इसकी गर्दन अलग कर दी जाए और लाश दरिया में बहा दी जाए। उसको ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ। सरदार ने लड़की से कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? लड़की ने बड़ी लापरवाही से जवाब देते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा ये मतलब है कि किसी तरह तुम्हें इसी वक्त बगदाद भेज दिया जाए। सरदार ने कहा कि बात तो कुछ ऐसी ही है। लड़की ने सरदार से कहा, अच्छा तुम सामने वाले कमरे में चलो।
सरदार ने अपना घोड़ा साथ लिया और कमरे में चला गया। लड़की ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाहर निकलकर सरदार ने देखा कि वो बगदाद के किले में खड़ा हुआ है। उसने घोड़ा वहीं छोड़ा, लड़की को अपने साथ लेकर शाही दरबार में गया। जिस वक्त ये दोनों यहाँ दाखिल हुए तो जल्लाद शहरयार को लेकर बाहर जा रहे थे। सरदार ने जल्लादों को रोकने के लिए कहा और आगे बढ़कर तमाम माजरा मलका को सुनाया। वजीर की मौत का किसी को यकीन नहीं आया, बल्कि सबने यही सोचा कि उसको भी शहरयार ने कत्ल कराया है। मलका ने सर पीट लिया और कहने लगी, हाय, भाई को भाई ने कत्ल कर डाला। इस जालिम को जरा भी तरस न आया। ये सुनकर लड़की आगे बढ़ी और बुलंद आवाज से कहा, नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है, शहरयार बेकसूर है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा वजीर और हाकिम बगदाद कहाँ है। मलका तख्त से उठकर उसके पास आई। लड़की ने अपनी अंगूठी के शीशे पर हाथ फेरा और मलका से कहा, लो इस शीशे में देख लो। मलका और सरदार आमिर ने देखा कि शहजाद मैं अपने लश्कर के जंगल में शिकार खेल रहा है, वजीर भी उसके साथ है। मलका ये देखकर तड़प उठी और कहने लगी, मेरी बच्ची, मुझे उन सबसे मिला दे। लड़की ने कहा कि जो भी इन लोगों से मिलना चाहता है किसी एक कमरे में जमा हो जाए। शहरयार, उसकी बेवा भाऊज, बूढ़ी मलका और सरदार आमिर एक कमरे में चले गए। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद लड़की ने दरबानों से कहा कि दरवाजा खोल दो। दरबानों ने दरवाजा खोला तो उस कमरे में कोई ना था। ये सब लोग हैरत में थे कि ये क्या हुआ। लड़की ने बड़े जोर से कहकहा लगाया और बोली, यहाँ मेरी हुकूमत है और अब तख्त की मालिक मैं हूँ। अगर किसी ने जरा भी चूकी तो याद रखो जादू के जरिए जलाकर खाक कर दूंगी। सब उससे डर गए और उसको तख्त का मालिक बना दिया। शहरयार वगैरह का क्या हुआ ये मालूम ना हो सका। कहते हैं कि लड़की ने उनको जादू के जरिए जलाकर खाक कर दिया था। प्यारे दोस्तों,